Good morning, students. Welcome back to the class 12, subject business study, chapter number 2, principles of management, revision part 4. Today's topic as continued principles of management by Henry Fayol. In earlier video, we have seen 7 main principles of management. Today, we will carry forward the next 7, and in that terms, we will complete our revision work. You have to work very hard on the principles and techniques of management because these concepts are to be understood very carefully so that in case studies you can understand very carefully and write it the correct answer, because you cannot write any answer in the paper. As you know, it has to be scientifically and physically, and it has to be clearly mentioned that that concept is being used in that particular question. So case study requires huge studies in business study, so please concentrate on your study related to subject. Economics requires only theoretical terms and formulas, rules and regulations. But in business subject, you have to be very much accurate and thinking personality. So let's begin with the principles. Next 7 point. I have a structure again. What we have carried on principles of management. First point, we have seen division of work in last video, then authorities and responsibility, discipline, then unity of command, unity of direction, and then we have seen subordinates of interest, individual interest to general interest, and then we have seen remuneration of an employee. So these 7 points we have studied in the last video. In today's video, we will carry forward as centralized and decentralized, scalar chain, order, discipline or equity, sorry, equity not discipline, then stability of personal incentives and spirit de crop. These 7 points will be studied today one by one. So let's begin with the first topic, centralized and decentralized. In principles of management, first point, centralization and decentralization. Centralization means only one person or two-person who takes the decision for majority. In decentralization, every member can take decision. It is considered as centralized and decentralized. Let's begin the topic one by one. Centralized is the process of concentrating of powers of decision making by one person. सेंट्रलाइज मैनेजमेंट में एक ही इंडिविजुअल के पास पावर होती है डिसीजन लेने की, वेयर एज डिसेंट्रलाइजेशन में अलग अलग लोगों के बीच में और मोर देन वन पर्सन के पास डिसीजन लेने की पावर होती है. It is considered as centralization and decentralization. The degree of centralization or decentralization depends how large a company is. Small organization होगा तो centralized method applicable है, लेकिन लार्ज कंपनी है तो डिसेंट्रलाइजेशन एप्लीकेबल करना चाहिए. लेकिन बहुत सारे ऐसे भी डिसीजन होते हैं जिसके अंदर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है. Generally, large organizations are more decentralized as compared to others. The panchayati system in our country is the very good example of decentralization at the national level. आपने 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़े हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायत. तो ये जो फेडरलिज्म है इसके अंदर पंचायती सिस्टम जो है ये आपका ग्रेटर एग्जाम्पल है डिसेंट्रलाइजेशन के लिए. पंचायत गांव के लिए डिसीजन लेती है, फिर बाद में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो अपने सिटीज के लिए डिसीजन लेती है. तो ये सब डिसेंट्रलाइजेशन पावर्स है. नॉर्मली अगर हम इसको और ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर दें तो डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, डिपार्टमेंट हेड जो होते हैं वो भी डिसेंट्रलाइज फॉर्म में काम कर सकते हैं. According to the Fayol, there is a need of balanced subordinate involvement through decentralization with management, retention of final authority through centralization. A company must be properly balanced, that is, it should neither be completely centralized nor decentralized. Hence, depending upon the profile of the organization, there must be some elements of centralization and decentralization in every organization. According to Fayol ये कहता है कि सबऑर्डिनेट्स को पूरा डिसेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए या पूरा सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज. और हर ऑर्गेनाइजेशन अगर इसको फॉलो करती है तो वो सक्सेस की तरफ बढ़ेगी. तो ये पहला पॉइंट हमने देखा, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज. नेक्स्ट पार्ट इज स्केलर चेन.
स्केलर चेन एक तरह का चेन होता है, वे ऑफ कम्युनिकेशन है ये। आप इसमें कोऑर्डिनेट करते हो हर ग्रुप के साथ में। तो यहाँ पे फ्योल ने क्या कहा है, ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड should be followed by the management and managers and subordinates। हर किसी को एक प्रॉपर चैनल लेके चलना पड़ेगा। हर एक प्रॉपर चैनल को अगर हम लेके चलेंगे तो बॉटम से लेके टॉप तक सबके बीच में कम्युनिकेशन अच्छा होगा, अथॉरिटीज की सबके पास होगी और अथॉराइज की वजह से वो अपना बेटर डिसीजन ले सकते हैं। तो मेरे पास एक टॉपिक के रिलेटेड यहाँ पे एक और एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। दिस स्केलर चेंज रेफर्स टू द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हायर रैंक टू लोअर रैंक। टॉप मैनेजमेंट से लेके लोअर मैनेजमेंट तक की फॉर्मल लाइन क्रिएट की जाती है जिसके अंदर डिसीजंस लिए जाते हैं। The principles of scalar change suggest that there should be a clean line of authorities from top to bottom, link supervisors and subordinates at all level। Principles of scalar change ये कहता है कि it should be a clear description और clear line from top level to management जिसके पास authorities and responsibilities दोनों हो, और यहाँ पे superior and subordinate हर level पे linked होने चाहिए। The scalar change survive a chain of commodity as well as command as well as communication। In normal substance, the formal communication is required to be made by following this chain। स्केलर चेन जो है वो एक तरह का चेन ऑफ कमांड होना चाहिए और कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए। यहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो मेनली फॉलो करनी चाहिए विद द चेन। आपका कोई प्रॉब्लम है तो ए से बी जाएगा, बी से सी जाएगा, सी से डी जाएगा। तो ये चेन जो है ना वो ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा कम्युनिकेशन के थ्रू। और कमांड एंड प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हो तो वो बहुत ही ईजिली आपको रिजल्ट मिल सकता है। जैसे कुछ पावर्स आपके पास नहीं है जिससे आप डिसीजन नहीं ले सकते, तो आप अपने ऊपर वाले को बोलोगे। ऊपर वाला क्या करेगा, अगर उसके पास पावर है तो वो डिसीजन ले लेगा, अगर उसके पास पावर नहीं है तो वो उसके ऊपर वाले को बोलेगा। तो ये एक चेन होता है, स्केलर चेन होता है। स्केलर चेन के अंदर नेक्स्ट पॉइंट एग्जांपल रिलेटेड है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन अ वर्कर्स नॉर्मली कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द सीईओ। बॉटम लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मल जो पर्सन होता है या वर्कर होता है उसका कोई कांटेक्ट ही नहीं है टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ में, तो कम्युनिकेट कर ही नहीं सकता। ही हैज़ टू फॉलो द फॉर्मल लेवल्स। उसको अगर बात करनी है तो वो हर एक लेवल से जाएगा, तब जाके वो ऊपर टॉप मैनेजमेंट से बात कर सकता है। जैसे फोरमैन से पहले उसको बात करनी पड़ेगी, फोरमैन से बात करने के बाद में सुपरिटेंडेंट से बात करनी पड़ेगी, सुपरिटेंडेंट से फिर बाद में मैनेजर से बात करनी पड़ेगी, फिर मैनेजर से आप डायरेक्टर तक जाते हो। तो ये एक चैनल है, इस चैनल को आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। ये कुछ मैंने एक डायग्राम लिया था, इस डायग्राम पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप नीचे हो लाइक ई एन एस, अगर आपको कम्युनिकेट करना है ई से एस तक, तो आपको नॉर्मली कम्युनिकेट कैसे करना है, आपको नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा। ई से डी जाओगे, डी से सी जाओगे, सी से बी जाओगे और बी से ए जाएंगे। फिर ए क्या करेगा, दूसरा प्रोपोर्शन लेके ए से पी तक जाएगा, पी से क्यू तक जाएगा, क्यू से आर तक जाएगा, आर से एस तक जाएगा। ये कम्युनिकेशन आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हर एक कम्युनिकेशन के साथ में आप आगे बढ़ते हो। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के साथ में लिखा है, इन द गिवन फिगर द हेड ए हैज टू लाइन्स ऑफ अथॉरिटी अंडर हिम। ए जो है उसके पास दो लोगों के पास दो अलग अलग चैनल का पावर उसके पास अवेलेबल है। वन लाइन कंसिस्ट ऑफ बी सी डी ई। बी सी डी ई जो है वो ए को कम्युनिकेट करता है या उसके साथ में बात करता है। अनदर जो है वो पी क्यू आर एस जो है वो ए को ही रिपोर्ट करता है। बी सी डी ई पी क्यू आर एस ये सब जो है वो ए को ही रिपोर्ट करते हैं। Now suppose D has to communicate with R। अगर D को R से कम्युनिकेट करना पड़े तो वो सेम लेवल पे है दोनों, तो दोनों को चलना कैसे पड़ेगा। How is also they same level as D, they then he has to follow the routine D to C, C to B, B to A and A to P, P to Q and Q to R। यहाँ तक आप जा सकते हो। मैंने वहाँ पे S एडिशनल लिख दिया है तो वो नहीं चलेगा। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ स्केलर चेन आर तक आप लिमिट जा सकते हो। अगर हम इसको पढ़ने की कोशिश करें या डायरेक्ट बात करने की कोशिश करें तो ये जो ई से लेके ए तक जाता है ना उसको हम लोग कहते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। ई डी सी डी ए ये हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन है।
अब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या हुआ, ए से पी, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस तक जो जाएगा वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है गैंग प्लैंक। अब वो जो गैंग प्लैंक जो है ना वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। यहाँ पे डी ने आर तक मैसेज पहुंचाया तो वो दो मैसेज जो है एक दूसरे को पहुंचा है तो वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन से भी पहुंच जाता है। I hope you have understood the scalar chain. Next is order. It has to be related to in a place. Here, according to this principle, in an organization there should be a suitable place for everything and everyone, and everything and everyone should have at the right its right place. Should be at the right place. हर चीज को एक प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप रखो या असेंडिंग ऑर्डर में रखो, हर प्लेस को आप प्रॉपरली यूटिलाइज करो। तो यहाँ पे ऐसा वर्ड क्लियर किया गया, एवरीथिंग एंड everyone should have its right place. In other words, we can say that there must be an orderlessness in the organization. There should be proper order. आप अगर इमेज देखते हो तो इमेज में हर एक चीज को एक सिंक्रोनाइज वे में रखा गया है। आप मॉल्स में जाते हो वहाँ पे एक ऑर्डर में सब कुछ रखा जाता है तो कस्टमर वहाँ पे जाके अपने हिसाब से परचेज करता है। अकॉर्डिंग टू फ्यूल people and material must be suitable place at appropriate time for maximum efficiency. हेनरी फ्यूल ऐसा कहता है कि पीपल एंड मटेरियल जो है वो सूटेबल प्लेस पे हमेशा होने चाहिए परफेक्ट टाइम पर, क्योंकि वहाँ पे अगर वो पर्सन है तो इफेक्टिव रिजल्ट हमें मिल सकता है। द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इज कंसर्न विद द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड प्लेस ऑफ पीपल, प्लेसमेंट ऑफ पीपल। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब है कि आपको प्रॉपर अरेंजमेंट करना है गुड्स, थिंग्स का और ह्यूमन बीइंग का। Point has been elaborated. The order has to be followed in the type of material order. Arrangement of things is called as material order to ensure proper and fixed place for various materials, tools and equipments. कंपनी में जाते हो तो मशीन को एलोकेट करना, प्रोडक्ट्स को एलोकेट करना, डिपार्टमेंट्स को एलोकेट करना, ये सब कुछ आपका मटेरियल ऑर्डर में आता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर में क्या दिया हुआ है, अरेंजमेंट ऑफ पीपल्स is referred as a social order. It enhances proper and fixed place or seat or cabin etc. for each employee in the organization. अगर कभी आप कंपनी में विजिट करते हो तो कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज को सीट होती है, पर्सनल सीट्स होती हैं। स्कूल का अगर एग्जांपल है तो स्कूल के अंदर टीचर्स के लिए वर्क स्टेशन एक बहुत ही एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे सबको सीट्स एलोकेटेड की जाती है। प्रिंसिपल ऑफिस का एग्जांपल ले लो, प्रिंसिपल ऑफिस में सिर्फ प्रिंसिपल बैठ सकते हैं, कंप्यूटर डिपार्टमेंट सिर्फ कंप्यूटर रूम में ही बैठ सकता है। तो ये सब जो है वो एलोकेशन है, इट हैज़ टू बी एलोकेटेड, और हर किसी को उनकी प्लेस दिखानी जरूरी है, उसको कहते हैं सोशल ऑर्डर। इसके एडवांटेजेस क्या है, इट रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी एंड ऑर्गेनाइजेशन विल फंक्शन स्मूथली विदाउट एनी हिंड्रेंस, minimizing of wastage of time cost in search of men's and other material। तो ये कुछ एडवांटेजेस आपको दिए हुए हैं। तो उस एडवांटेजेस के अंदर मैं अगर आपको कहूँ तो अगर आपने मटेरियल ऑर्डर एंड सोशल ऑर्डर किया तो आपको प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी में आसानी होगी, क्योंकि आपको प्रोडक्ट आसानी से मिल जाएगा, मटेरियल आसानी से मिल जाएगा। मेंस को अगर आपको सर्च करना है तो आप उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके ही सर्च कर सकते हो। इसमें क्या होगा, फंक्शंस और स्मूथनेस बहुत क्लियरली हो जाएगी, और यहाँ पे वेस्टेज ऑफ टाइम एंड कॉस्ट जो है वो भी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आप पर्टिकुलर पर्सन को डायरेक्टली अप्रोच कर लेते हो। Hope so you have understood the order. Next point is equity. According to the FIOL, good sense and experience are needed to ensure fairness of all employment, who should be treated as fair as possible. This principle states that the manager should be keep and fair towards their workers. All workers has to be treated alike, and there should be no discrimination on the basis of gender, religious, caste, beliefs, etc. All the employees should be treated equal and impartial. हर एक मैनेजर को फेयर एंड स्क्वायर होना पड़ेगा, जातिवाद पर, जेंडर पर, कास्ट पर, रिलीजियस पर, बिलीव्स पर आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। यहाँ पर एज अ मैनेजर आपको हर एम्प्लॉय को ट्रीट करना है इक्वली और इम्पार्शली। यहाँ पे इनको कास्ट, रिलीजियस और जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। For example, in multinational corporation, people of various nations works together in an environment which is free from any kind of discrimination. Equal opportunities are
एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स आर अवेलेबल फॉर ईच एम्प्लॉयमेंट। एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के अंदर वर्ल्ड से बहुत सारे लोग आते हैं और वो बहुत सारे लोग मिलके एक साथ में काम करते हैं, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो ये एक इक्विटी का कॉन्सेप्ट है जिसमें ह्यूमन बीइंग को आप ट्रीट करते हो इक्वली। Hope so you are understanding this equity. In equity, employees seems to become loyal and devout if such treatment is given. अगर आप एम्प्लॉय को बिलीव करवा देते हो कि आपके साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो वो एम्प्लॉय आपकी कंपनी के लिए डिवोटेड हो जाएगा और लॉयल होगा। Subordinate must perform similar jobs like two clerk should be paid at the same wage rate. और सैलरी में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अगर आप उसको काम देते हो तो उस काम के हिसाब से उसको सैलरी भी मिलनी चाहिए। No discrimination should be there. If the two employees are late, some treat should be given to both defaulters. अगर दोनों ही लेट आते हैं तो दोनों को ही पनिश करो और दोनों ही जल्दी आते हैं तो दोनों को अप्रिशिएट करो। However, equity does not mean that in an organization equal salaries are being fixed for all type of work. Instead of it is obviously it has based on work profile. यहाँ पे ऐसा है कि इक्वलिटी की बात जब हम लोग करते हैं तो इक्विटी में सैलरीज की जब हम बात करते हैं तो इट में बी डिफर्ड बिकॉज क्योंकि यहाँ पर ऐसा कॉन्सेप्ट है ना कि जिसका एक्सपीरियंस है, वर्क प्रोफाइल है, वो बंदा बहुत ही एक्सपर्ट है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, तो उसकी सैलरी भी अच्छी होगी। और एक फ्रेशर है तो फ्रेशर के लिए आप फिक्स नहीं कर सकते। तो स्पेसिफिकली आपको सैलरीज जो है उसके अंदर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, बट आप कास्ट, जेंडर, रिलीजियस के इसमें आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, आपको वहाँ पे इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है? सेटिस्फाई ऑफ एम्प्लॉयज लीड्स टू बूस्ट अपॉन देयर मोरालिटी। सेकंड पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ cordial and harmonious relationship among the superior and subordinates। तो ये दो पॉइंट्स अगर आप स्टडी भी कर लेते हो तो भी काफ़ी है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि इक्विटी से क्या होता है। इक्विटी अगर आप क्रिएट करते हो तो एम्प्लॉय के इसमें मोरालिटी जनरेट होती है और वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करता है और फिर बाद में उसके बीच में एक डिवोशन होता है, कम्युनिकेशन अच्छी होती है, रिलेशनशिप अच्छा बना रहता है। पॉइंट नंबर 12 इज sustainability of person. According to Fioll, employee turnover should be minimized and maintain organizational efficiency. कंपनी के ऊपर बर्डन नहीं होना चाहिए, जो आप काम देते हो वो काम टाइम पे हो जाए और साथ साथ में मिनिमाइज वे में वो बंदा आपके लिए बेनिफिशियल हो। इन एन ऑर्गेनाइजेशन द एम्प्लॉय शुड बी सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आफ्टर फॉलोइंग द ड्यूज एंड रेगुलर प्रोसेसेस। मीन्स rules and regulations has to be followed, terms and conditions has to be followed related to procedures. Once they are appointed, they should be kept at the position of a minimum fixed period. आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक बंदे को आपने हायर किया, एक महीना उसको काम किया, उसकी पोजीशन चेंज कर दी। नो, आप उस बंदे को उस पोजीशन पे कम से कम 6 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल भी आप रख सकते हो। आप देखो कि वो काम कैसा कर रहा है, अगर उसका काम अच्छा है तो ही उसको प्रमोट करो। According to the principle, work should have been stability of tender and should be given sufficient time to show their performance. आप उनको परफॉर्मेंस दिखाने का टाइम दो, उनको टास्क दो और टास्क देने के बाद में आप एडजस्ट करो कि उसको कैसे आगे बढ़ाना है। मोर ओवर फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर्स और रोटेशन शुड बी अवॉइड। ट्रांसफर करना, रोटेशन करना, उसको ऊपर ले जाना फिर नीचे ले आना, ऐसे सारे कॉन्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और वो सेटल नहीं हो पाएगा। तो सेटल करने के लिए आपको ये सारी चीज़ों का अवॉइड करनी पड़ेगी। इफ़ एन एम्प्लॉय रिसीव्स ट्रांसफर ऑर्डर बाय द टाइम ही लर्न्स एंड गेट्स सेटल्ड इन द जॉब, इट विल बी लीडेड टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड ही विल नॉट बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू द बेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो बंदा है वो काम कर रहा था, करते करते अभी सिर्फ सेटल ही हुआ था और फिर उसको ट्रांसफर का ऑर्डर आ गया, तो जब वो ट्रांसफर चला जाता है तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का जो रिसोर्स है वो टोटली वेस्ट हो जाता है और ऑर्गेनाइजेशन को कोई बेनिफिट भी नहीं होता। एडवांटेजेस है, रेट ऑफ लेबर टर्नओवर विल बी स्लो डाउन, कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग कैन बी मिनिमाइज, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। अगर स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल आप करते हो तो यहाँ पे लेबर टर्नओवर जो है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग के ऊपर जो खर्चा हम करते हैं उसको कम कर सकते हैं और साथ साथ में हम ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट्स भी देख सकते हैं। पॉइंट 13 इज इनिशिएटिव। अकॉर्डिंग टू द फ्यूल, वर्कर्स शुड बी एनकरेज टू पार्टिसिपेट।
and make a plan for improvement of the organization. Initiative refers to the first step taken by the employees towards the self-motivation. The principle states that employees at all levels should be given freedom to some extent so that they can give forward and use their skills to achieve the expected goals. हर कोई अपना plans अपने ideas रखते हैं, तो उस आइडियाज़ को फुलफिल करने के लिए हर एक एम्प्लॉय को आप एनकरेज करो कि वो हमारे मैनेजमेंट डिसीजंस के अंदर पार्टिसिपेट करें और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको वो कंप्लीट कर सकें. Everyone has to take participation. It is worth mentioning that while applying the principles of initiative, the established practice of an enterprise should not be bypassed. For creation a healthy environment, employee suggestion system should be developed whereby initiative or suggestions from the employees are invited. Some of this may certainly result in sustainable reduction in cost and time. अगर आप सजेशंस मांगते हो तो उसके लिए वैसा कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा, आपको सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करनी होगी या फिर ऐसी मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ेगी जिसमें ओपन सेशन आप रख सकते हो. ओपन सेशन में हर एम्प्लॉय अपने व्यूज़ रखे विदाउट क्रिटिसिज्म. अगर वो बंदा अपने व्यू रखता है और उससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो तो आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो. एडवांटेज, इट डेवलप सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू इन एम्प्लॉय. अगर आप इनिशिएटिव जैसा कोई कॉन्सेप्ट लेते हो तो उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट के अंदर मोटिवेशन आती है, एम्प्लॉयज मोटिवेटेड होते हैं और उनको पता होता है कि नहीं हमारे डिसीजंस भी वैल्यू रखते हैं. एम्प्लॉयज गेट सेटिस्फाइड. अगर उनका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो गया तो वो सेटिस्फाई होंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज स्पिरिट डिक्रॉप. स्पिरिट डिक्रॉप का मीनिंग होता है टीम स्पिरिट. अकॉर्डिंग टू फ्यूल मैनेजमेंट, according to Fayol, management should be promoted a team spirit of unity and harmony amongst employees. In order to achieve the organizational objective, management should promote teamwork and coordinate. The feel of I should be replaced with we as a manager while we have conversation with the workers. Fayol ऐसा कहता है कि हम लोग नॉर्मली टीम स्पिरिट क्रिएट करें, हारमोनी क्रिएट करें एम्प्लॉयज के बीच में. आई वर्ड को छोड़ के आप वी का इस्तेमाल करो. जब वी का इस्तेमाल करते हैं तो वर्कर कंफर्टेबल फील करते हैं. Spirit de crop refers to the team spirit, that is harmony in work group and maturity understanding amongst workers. It helps to develop an atmosphere of mutual trust and understanding. It is also concerned with the famous saying we unity is a strength. तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट भी आप ले सकते हो कि यहाँ पे यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, हार्मोनी क्रिएट कर सकते हैं, एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन क्रिएट कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं जिससे हम लोग यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ बना सकते हैं. इन द केस ऑफ स्पोर्ट्स, क्रिकेट का एग्जांपल ले लो. क्रिकेट में 11 प्लेयर्स अगर परफॉर्म करते हैं तो ही क्रिकेट में वो जीतते हैं. अगर कैप्टन या कमांडर जो है वो अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाता तो कंपनी या जो कमांडर जो है या कैप्टन है वो लॉसेस की तरफ भी जा सकता है. All the team members, and in case of army and all personalities playing or working for the respective teams, they should not be thinking that if they win it is the captain or commander alone who will be rewarded. क्लियर है, यहाँ पे कैप्टन या जो हेड है, कमांडर है, उनको ही खाली रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो एक टीम एफर्ट है. There must be a work of team. Similarly, feeling some of the developed amongst all the members of organization. There should be desired goal for the organization can achieve with a greater efficiency and effectiveness. एक टीम के साथ में जब काम करते हो ना तो बहुत सारी गलतियां जो है वो नज़रअंदाज की जा सकती है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअली काम करते हो तो आपकी गलती फटाफट रिकॉग्नाइज हो जाती है. इसलिए टीम वर्क के अंदर हर किसी को इक्वली एफर्ट्स देने ज़रूरी है. अगर आप एफर्ट्स दोगे तो ही आप आगे विन कर सकते हो या अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो. पॉजिटिव इम्पैक्ट के अंदर हम लोग पहली बात करते हैं, डेवलप्स कोऑर्डिनेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड बिलोंगिंग अमंग द एम्प्लॉय. जब स्पिरिट डिवेलप की बात करते हैं तो टीम के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बनता है. टीम स्पिरिट हेल्प्स इन अचीविंग गोल विद अ ग्रेटर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. और इसमें कोई गलती नहीं होती, यहाँ पे गलती हो भी रही है तो उसको यूटिलाइज भी कर लेते हैं. तो टीम वर्क आपको हेल्प करती है डिजायर्ड गोल को अचीव करने में. होप सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 7 टॉपिक्स, remaining 7 topics. Hope so you have understood clearly. That's it for today.
Thank you.